یعنی ایک مشتبہ عورت یہاں آئی اور تلاشی لے کر چلی گئی؟ میں نے تعجب سے کہا۔ اس نے واقعی بہت سرسری تلاشی لی۔ مجھے اس ٹائم بم کی طرف سے شدید خطرہ تھا جو ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں رکھا ہوا تھا۔ سامنے نے وہ دراز بھی کھولی اور بم والے تھیلے کو چھیڑے بغیر بند کر اسے کہیں کوئی مشتبہ چیز نہیں مل سکی۔ اس نے تمہارا سوٹ کیس بھی کھلوایا ہوگا؟ میں نے نا امیدی کے عالم میں پوچھا۔ اس میں چند کپڑوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے وہ بھی دکھا دیا۔ بیم گن کہاں گئی؟ میں نے بے صبری سے سوال کیا۔ وہ میں کل آپ کے ایک کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈال چکی تھی۔ تم نے رضاکارانہ طور پر اسے سب کچھ دکھا دیا اور تمہیں شبہ تک نہیں ہوا کہ وہ کوئی فرار تھی؟ سچ پوچھے تو جب تک وہ یہاں رہی مجھے اس پر کوئی شبہ نہیں ہوا۔ اس کی زبان سے پولیس کا نام سن کر میں خوفزدہ ہوئی اور میرا رویہ مدافعانہ ہو گیا تھا۔ اسے آپ میرے دل کا چور یا کچھ بھی کہہ لیں، میں نروس ہو گئی تھی۔ وہ یہاں سے کوئی چیز اپنے ساتھ بھی لے گئی ہے؟ میں نے غزالہ کی قابل فہم وضاحت کو دل میں قبول کرتے ہوئے پوچھا۔ ایک تنکا بھی نہیں لے گی۔ تلاشی کے دوران میں وہ بار بار کہتی جا رہی تھی کہ اسے پورا یقین ہے کہ ان لوگوں کو غلط اطلاع دی گئی ہے، کمرے میں کچھ نہیں ملے گا۔ تمہیں اندازہ ہوا کہ اسے یہاں کس چیز کی تلاش تھی؟ بظاہر اسے ہیروئن کے صفوف سے بھری ہوئی تھیلیوں کی تلاش تھی۔ میں ڈر رہی تھی کہ کہیں ہمارے دشمن نے ہیروئن کے بہانے پولیس کو ہمارے پیچھے نہ لگایا ہو۔ اب صرف ایک دشمن ہے، راجن، اور وہ ہمارے وجود سے بے خبر ہے۔ اصل بات تم نے خود مان لی ہے کہ تم نروس ہو گئی تھی۔ آدمی کے اوسان قابو میں نہ رہیں تو سوچنا سمجھنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ وہ تمہاری اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے بھی اپنی حماقت کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ واضح طور پر نادم نظر آ رہی تھی۔ عورت کا رویہ پولیس والوں جیسا نہیں تھا۔ جب تک وہ میرے ساتھ رہی میں اسے اس کی نرمی سمجھ کر اطمینان کے سانس لیتی رہی۔ اس نے تمہیں رابطہ کرنے کے لیے کوئی فون نمبر تو دیا ہوگا؟ کارڈ پر اس کے 2 نمبر موجود ہیں، غزالہ نے بتایا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ فون نمبر بلکہ پورا کارڈ جعلی ہوگا۔ آنے سے پہلے اسے معلوم تھا کہ تم تھائی زبان سے ناواقف ہو۔ اسے جواب دیتے ہوئے میں نے اپنی جیب میں سے وہ کارڈ نکال لیا جو ہم دونوں کے لیے یکسر ناقابل فہم تھا۔ مجھ سے غلطی ہوگی، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے لب و لہجے میں تندی سے غزالہ کی پشیمانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے کی اڑی اڑی رنگت اور خوف سے پھیلی ہوئی آنکھیں دیکھ کر مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ اسے شرمندہ کر کے گزری ہوئی باتوں کو لوٹانا ناممکن تھا۔ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اب جو کچھ ہوگا وہ دیکھ لیا جائے گا۔ تم اپنے ذہن کو اس بوجھ سے آزاد کر کے کوئی خاص بات یاد کرنے کی کوشش کرو تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ اس عورت کو بھیجنے والے کون تھے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ وہ آپ کی غیر موجودگی میں یہاں آئی۔ اب یہاں ہوتے تو شاید میں اتنی ہراساں نہ ہوتی۔ اس کی زبان سے اپنی موجودگی اور غیر موجودگی کا ذکر سنتے ہی میرے ذہن میں ایک کوندا سا لپکا اور میں نے اضطراب کے عالم میں اپنی جگہ چھوڑ کر کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ میں جب سے بینکاک آیا تھا ہوٹل سے دیر سے باہر نکلتا تھا۔ وہ کم و بیش میرا معمول تھا۔ اس روز ڈان نے اچانک ہوٹل کے باہر آ کر مجھے قبل از وقت کمرے سے روانہ ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ کسی پروگرام کے بغیر غیر متوقع طور پر آیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میری حوصلہ افزائی کے لیے خود میرے پاس چلا آئے گا۔ چائے چاوفان کو بھی پہلے سے علم نہیں رہا ہوگا کہ ڈان اس کے ساتھ میری طرف آئے گا۔ ڈان نے اسے بلایا اور وہ سیلرز بار پہنچ گیا۔ ڈان کو لے کر اپنی گاڑی میں ہلٹن ہوٹل کی طرف روانہ ہونے کے بعد چاوفان کے پاس اتنی مہلت نہیں تھی کہ وہ انجانے میں کسی سے اس سفر کی منزل کا تذکرہ کرتا۔ چاوفان کو صرف منزل کا علم ہو سکا۔ ڈان اسے زیادہ خاص نہیں ڈالتا تھا۔ غالب امکان یہ تھا کہ دوران سفر راستے میں ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی ہوگی۔ ہوٹل پہنچ کر کیا کرنا تھا یہ صرف اور صرف ڈان کو معلوم تھا۔ ادھر ڈان اپنے معمول سے ہٹ کر مجھے اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوا۔ ادھر جعلی پولیس افسر میرے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ وہ دونوں واقعات اتفاقی نہیں ہو سکتے تھے، ان کے درمیان کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا۔ اس امر میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ ڈان میری غیر معمولی کارکردگی سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ اس نے مسلسل میرے کام کی تعریفیں کی تھیں۔ تازہ ترین ملاقات میں اس نے مجھے 1,00,000 بات کے نقد انعام سے نوازا تھا، مگر قرائن بتا رہی تھی کہ وہ میرے کام پر کوئی حرف گیری نہ کرنے کے باوجود میری طرف سے مطمئن نہیں تھا۔ پہلے اسے میرے فرار کا اندیشہ ہوا اور اس نے ہمارے پاسپورٹ ضبط کر لیے۔ وہ قصہ پوری طرح نمٹنے نہیں پایا تھا کہ جعلی پولیس افسر کا معاملہ سامنے آ گیا۔ مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ وہ ڈان کا پھیلایا ہوا جال تھا۔ اسے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ میں نے اس کے کسی آدمی کی مدد لیے بغیر موتی محل کے ناقابل تسخیر حفاظتی نظام کو تہس نہس کر کے وہاں خون آشام دھماکہ کرا دیا تھا۔ غالب امکان یہ تھا کہ ڈان نے اپنے تحفظات کے سلسلے میں چاوفان کو اعتماد میں نہیں لیا ہوگا۔ بینکاک میں میرے روابط کا سراغ لگانے کے لیے اس نے میرے اقامتی کمرے کی اچانک تلاشی کا منصوبہ بنایا اور مجھے ہوٹل سے نکال کر لے گیا۔ میرے بعد غزالہ کمرے میں رہ گئی۔
वहां के जायजे के लिए कोई मर्द आता तो शायद वो उसे किसी कीमत पर अंदर न आने देती। डॉन के अमले यहाँ चाहने वालों में मर्दों के साथ औरतें भी शामिल थी। गिफ्ट शॉप वाली के मामले में चाउफान ने मुझे बता दिया था कि डॉन की एक वफादार ने दिल खोलकर उसे अपने तशद्दुद का निशाना बनाया था। डॉन ने ऐसी ही किसी औरत को पुलिस के नाम पर मेरे कमरे का जायजा लेने के लिए भेजा और वो औरत आसानी से गजाला को हरासा करके लौट गई। अगर मेरे वो अंदेशे दुरुस्त थे तो मैं बहुत खौफनाक सूरत हाल से दो चार हो चुका था। मैं बैंकॉक में डॉन का कैदी बनकर रह गया था। वो चालाक शख्स एक तरफ मुझे पुचकार रहा था तो दूसरी तरफ मेरी पसपर्दा सरगर्मियों का कोई लगाने के चक्कर में पड़ा हुआ था। मुझे यकीन था कि उसे कहीं से मेरे असल अज़ाहिम का मोहूम सा सुराग भी मिल जाता तो मेरी गर्दन कटवाने में ताखीर न करता। इसी असना में रूम सर्विस की वेट्रेस कमरे से खाली बर्तन ले जाने के लिए आ गई। मेरा जहन इन वाक़यात में बुरी तरह उलझा हुआ था। मैं सोच रहा था कि इसी वक्त चाउफान को फ़ोन करके तलब करूं और उसे पूरा किस्सा सुनाकर वो विजिटिंग कार्ड दिखाऊं ताकि उसके मंदरजात का इल्म हो सके। वाक़या मेरे लिए बहुत संगीन था। इस पर चाउफान का रद्द अमल सामने आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। वेटर्स खाली बर्तन समेट कर पलटी थी कि गजाला बोल पड़ी, ये मकामी औरत है, कार्ड की तहरीर से क्यों न दिखाई जाए। वो बिल्कुल सामने की बात थी। वेटर्स बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती थी। चंद रोज के कयाम के दौरान में हमारा रूम सर्विस के तकरीबन तमाम अमले से वास्ता पड़ चुका था और मैंने अंदाजा लगा लिया था कि हिल्टन में मेजबानी के फराइज अंजाम देने के लिए दूसरी सलाहियतों के साथ अंग्रेजी बोलनी जरूरी थी। खदोखाल के एतबार से होटल का बेशतर अमला मकामी था। मिस, क्या तुम एक काम कर सकती हो? मैंने उसे आवाज देकर कहा। वो दरवाजे के करीब रुक कर पलटी और पलकें झपका कर मेरी तरफ देखने लगी। वो मुंह से कुछ नहीं बोली। उसके होठों पर बहुत धीमी से मुस्कुराहट थी। उसकी स्याह आंखें इस तफसार तलब अंदाज में मेरी तरफ उठी हुई थी। ये कार्ड पढ़ दो, मैं थाई जुबान से वाकिफ नहीं हूँ। मैंने कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने बर्तनों की ट्रे एक कुर्सी पर टिकाई और मेरे हाथ से कार्ड लेकर इस पर एक सरसरी नजर डालकर बोली, ये किसी कांग मून कंपनी का कार्ड है। नीचे कंपनी का पता, फोन और फैक्स नंबर लिखे हुए। मेरी और गजाला की नजरें चार हुई। हमारे शुबे की तस्दीक हो गई थी। इस पर कंपनी के किसी ओहदेदार का नाम लिखा हुआ है। मैंने पूछा, किसी का नाम नहीं सर, ये सादा बिजनेस कार्ड है। क्या तुम इस कंपनी से वाकिफ हो? मैंने सवाल किया। नो सर। उसने बेबसी से अपने सर को झुंबिश दी। शहर में हजारों तिजारती और कारोबारी इदारे हैं। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। यह फर्म शहर के मशहूर कारोबारी मराकज में वाक़ है। ये कार्ड देखकर टैक्सी ड्राइवर आपको सही पते पर पहुंचा देगा। मेरा शुबा दुरुस्त साबित हुआ। वेटर्स के चले जाने के बाद मैंने कहा, यह फजूल कार्ड है जो कहीं से इसके हाथ लगा होगा। इसका सामी की जात से कोई ताल्लुक नहीं है। अब क्या किया जाए? गजाला परेशानी के आलम में बोली। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं हो सका कि वह औरत यहाँ क्या देखने के लिए आई थी। कोई हमारे पीछे लग गया है। अब हम यहाँ महफूज नहीं है। हमें चाउफान को एतमाद में लेकर होटल बदल लेना चाहिए। मुझे यकीन है कि वो कोई तीसरा आदमी नहीं है और डॉन की तरफ से आई थी। मैं नरमी से कहा, डॉन ने औरत का काम आसान करने के लिए मुझे यहाँ से हटाया था। मुझे उसको छोड़ने के लिए सेलर्स बार जाना और वहां से आना पड़ा। वो चाहता तो मुझे वहीं बुला सकता था। इस बहाने से उसने अपनी भेजी हुई औरत को इतना वक्त दे दिया कि वो इत्मीनान से अपना काम पूरा कर सके। डॉन की जात पर वो संगीन इल्जाम गजाला आसानी से कबूल नहीं कर सकी। उसने पै दर पै तनकीदी सवालात का सिलसिला शुरू कर दिया। मैं इस बारे में पहले ही खासी मखज़नी कर चुका था। मैं उसे तसल्ली बख्श जवाबात देता चला गया और वो रफ्ता रफ्ता मेरी हम नवा बन गई। मैं डॉन से नहीं मिली, लेकिन आपने मेरे जहन में उसकी जो तस्वीर बनाई है वो सर्कस से मेल नहीं खाती। मेरे ख्याल में उसे खरा आदमी होना चाहिए। उसे आप पर कोई शक है तो वो आपसे खुलकर बात क्यों नहीं करता? ये उसकी मजबूरी है। वो मेरे हाथ से राजन का खात्मा कराने का ख्वाब देख रहा है। मैंने कहा, चोरी छुपे मेरे खिलाफ छानबीन कर रहा है। उसे अंदेशा होगा कि उसने मुझसे बराह रास्त कोई पूछगछ की तो मैं भड़क जाऊंगा। अब आप क्या करेंगे? उसने उलझन अमेज अंदाज में सवाल किया। खामोश रहना खतरनाक होगा। मैंने सिगरेट सुलगा कर जवाब दिया। डॉन समझ जाएगा कि हमारे दिल में कोई चोर है। मैं पुरजोर अंदाज में उसे शिकायत करूंगा। क्या अजीब बात नहीं कि उससे इसी की शिकायत की जाए? मैं उसे अपने शुबहात से आगाह नहीं करूंगा। मेरी शिकायत किसी नामालूम हरीफ के खिलाफ होगी। वाकया ताज़ा था। शिकायत करने में ताखीर मुनासिब नहीं थी। मैंने चाउफान को दरमियान में लाने का इरादा तर्क के बराह रास्त डॉन से बात करने का फैसला कर लिया। मोबाइल फोन पर घंटी बजते ही वो लाइन पर आ गया। वो उसके लिए मेरी पहली फोन कॉल थी जो गैर मुतवक्का तौर पर की जा रही थी। उसने अखड़ और गुर्राती हुई आवाज में कुछ कहा जो मेरी समझ में नहीं आया। शायद उसने अपनी जुबान में कुछ कहा था। डॉन, मैं अली बोल रहा हूँ। उसके खामोश होने पर मैंने रसानियत से कहा,
ओह बोलो, क्या बात है? इस बार डॉन ने अंग्रेजी में जवाब दिया। मेरी आवाज़ सुनकर उसका लबो लहजा नर्म पड़ गया था। आज गजब हो गया। तो मुझे अपने साथ ले गए। पीछे से एक बदमाश औरत पुलिस वाली बनकर मेरे कमरे में घुस आई और मेरी बीवी को धमकाकर सामान और कमरे की तलाशी लेकर चली गई। मैं एक सांस में कहता चला गया, क्या वो तुम्हारे कमरे से कोई चीज चुरा कर भी ले गई है? डॉन ने पुरस्कून लहजा में दरियाफ्त किया। उसने मेरी शिकायत पर किसी खास रद्द अमल का मुजाहिरा नहीं किया। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है कि वो मेरी बीवी की नजरें बचाकर कुछ ले गई हो। सामान का पूरी तरह जायजा लेने के बाद पता चल सकेगा कि क्या क्या गायब है। वाकया अफसोसनाक है, लेकिन तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। डॉन, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, मैंने उसकी बात काट कर कहा। वो कौन थी? किस मकसद से आई थी? उसे किसने भेजा था? इन सवालों ने मुझे बेचैन कर दिया है। तुम सिर्फ मेरे दुश्मन पर निगाह रखो। तुम्हारे इन सब मसाइल की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं तुमको पूरा तहफ्फुज़ फराहम करूंगा। अपना सामान चेक करके मुझे बताओ कि वो कुछ ले तो नहीं गई। कोई चीज़ गायब है तो तुम्हें शाम से पहले वापस मिल जाएगी। डॉन का जवाब वाज़ेह नहीं था, लेकिन ज़ोमानी था। मेरी किसी भी गुमशुदा चीज़ के वापस दिलवाने का वादा करके उसने मेरे शुबे को तकवीयत दी थी। चाउफान का इससे दम निकलता था, मगर मेरी बात मुख्तलिफ थी। वो कितना ही सफाक और खून खार रहा हो, मैंने उसकी आना से खेल कर उसे इस हद तक अपनी मुट्ठी में ले लिया था कि वो मेरी किसी दो टोक बात का बुरा नहीं मनाता था। वो गोल मोल बातें करके मुझे टालना चाह रहा था। मैंने तहैया कर लिया कि उसे सच उगलवा कर रहूंगा। मैंने कहा, डॉन, ये लाखों की आबादी का शहर है। तुम इस बदमाश औरत को कहाँ ढूंढोगे? मुझे उसका सुराग बताओ या अपने शोबे से आगाह करो। मैं खुद उसकी आंतें निकाल कर सेलर्स बार पहुंचा दूंगा। मैं अपने दुश्मनों का लहू पी जाने का आदी हूँ। इस छोटे से मामले पर इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं अली। मेरे सख्त जवाब पर उसने हल्के से तादीबी लहजा में कहा, जब मैंने कह दिया है तो इसे मैं देख लूंगा। तुम्हारे जहन में कोई ख्याल सर उभार रहा है तो मुझे भी इसमें शरीक कर लो। अली, तुम बहुत जिद्दी हो। मुझे यकीन है कि सामे ने तुम्हारे सामान में से कोई चीज नहीं उठाई होगी। वाई और चली गई, तुमको उसे भूल जाना चाहिए। ओह, तुम उसका नाम भी जानते हो? मैंने तहय्युर ज़दा लहजा में कहा। मैं बिला वजह कोई बात नहीं कहता। उसकी ताकमाना आवाज सर्द हो गई। यहाँ किसकी मजाल है जो इस तरह तुम्हारे कमरे में घुस सके? सामे को मैंने भेजा था। डॉन के वो अल्फाज सुनकर मैं सन्नाटे में आ गया। आखिरकार मेरा शुबा दुरुस्त साबित हुआ था। मगर क्यों डॉन? मैंने दबे लहजे में एहतजाज किया। इसने मेरी बीवी पर हेरोइन की स्मगलिंग का खिलौना इल्जाम लगाया था। इसकी क्या जरूरत थी? अपनी जरूरतों को मैं तुमसे बेहतर समझता हूँ। डॉन ने रूखे लहजे में जवाब दिया। तुम बहुत दलेर और बेखौफ जवान हो। मैं तुम्हारी कदर करता हूँ। यह अच्छा हुआ कि तुमने मुझसे सामे की शिकायत कर दी। खामोश रहते तो मुझे कोई दुख देने वाला फैसला करना पड़ जाता। अब सब ठीक है। फौरी तौर पर मेरी समझ में नहीं आ सका कि मैं डॉन को क्या जवाब दूं। एक तरफ वो मेरा मुरब्बी और सरप्रस्त बना हुआ था, दूसरी तरफ मेरे खिलाफ अजीबो गरीब साजिशें कर रहा था। एक हाथ से 1,00,000 भात की गड्डी का इनाम दे रहा था और दूसरे हाथ से सामे को मेरे कमरे में घुसने के इशारे दे रहा था। इसके दिल में क्या था मेरे लिए जानना बहुत जरूरी हो गया था। डॉन, तुम्हारी बातें बहुत अजीबो गरीब हैं। मैंने गजाला को आंख मारकर माउथ पीस में थकी हुई आवाज में कहा। मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी। ज्यादा सोचने में यही खराबी होती है। डॉन की तरफ से खुश्क लहजा में जवाब आया। आदमी को अपनी बसात से बढ़कर नहीं सोचना चाहिए। जब मैंने तुमसे कह दिया कि सामे को मैंने तुम्हारे कमरे में भेजा था, वो किसी की जासूसा नहीं थी, तो तुमको वो किस्सा भूल जाना चाहिए। डॉन, में कोई रोबोट नहीं हूं। मैंने लजलजाई हुई आवाज में इल्तिजा की। जिस वक्त तुम मेरी कारकर्दगी पर खुश होकर चाउफान की गाड़ी में मुझे 1,00,000 भात के नोटों की गड्डी इनाम में दे रहे थे, शायद ऐन उसी वक्त सामे मेरी बीवी पर हेरोइन की स्मगलिंग में मुलव्विस होने का इल्जाम लगा रही थी। यह तजाद मेरी समझ से बाहर है। कोई तजाद नहीं है, डॉन ने किसी झिझक के बगैर कहा। तुमने अपनी कामयाबियों से मुझे हैरान कर दिया है। मैंने दुनिया देखी है, लेकिन आज तक तुम जैसे किसी और आदमी से मिलने में कामयाब नहीं हो सका। ये बात मुझे उलझा रही थी कि बाहर से आया हुआ एक बेसुरो सामा परदेसी छोटा राजन को कैसे नाको चने चबवा सकता है। चाउफान से जब बात करता हूँ वो तुम्हारे कसीदे पढ़ने लगता है। सच बात यह है कि मोती महल में होने वाले धमाके ने मुझे तुम्हारी तरफ से शुबे में डाल दिया था और मैंने तुम्हें आजमाने का इरादा कर लिया। कुछ चालाक लोग तुम्हारे साथी होते तो सामे इनके हाथों मारी जाती। उसे मैंने चारा बनाया था। वो तुम्हारी बीवी से छेड़छाड़ करके सही सलामत लौट आई। तुमने बहुत अच्छा किया कि मुझसे इस वाक़े का बिला ताखीर जिक्र कर दिया। तुम खामोश रहते तो मेरा ज़हन साफ ना होता। तो यूं कहो कि तुम मेरा इम्तिहान ले रहे थे। मैंने गहरा सांस लेकर कहा। तुम जो चाहो समझते रहो। मैंने तुम्हें हकीकत बता दी है। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा डॉन?
मैंने सपाट लहजे में पूछा। अब इसे खत्म ही समझो। तुम्हारा दामन बेदाग है, तुम अकेले रह कर भी वो सब कुछ कर सकती हो जो चाउफान जैसे 50 आदमी मिलकर नहीं कर सकते। तुम उसकी तजलील कर रही हो। सच सिर्फ सच होता है, इससे किसी की तजलील होती है न तौहीन। मैं बता चुका हूं कि वो दिल से तुम्हारा गर्विदा हो चुका है। इस मवाजने का वो भी बुरा नहीं मानेगा। तुमने मुझे होशियार कर दिया है, मुझे अपनी रफ्तार धीमी ही करना होगी, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। फिर कोई बड़ी कामयाबी हासिल हो गई तो तुम्हें शुबा होगा कि कुछ नामालूम आदमी मेरा साथ दे रहे, कोई नया इम्तिहान मेरा मुकद्दर बन जाएगा। शट अप। डान की आवाज में तहक्कुम की बजाय मोहब्बत थी। बाज लोगों को कुदरत बहुत ज्यादा हौसला अता करती है, वो अपनी राह में आने वाली किसी रुकावट को खातर में नहीं लाते। अब मैंने समझ लिया कि तुम्हारा शुमार उन्हीं लोगों में होता है, लेकिन अब भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना डान? मैंने मौका पाकर चुटके। ये तुमने कैसे समझ लिया? डान ने किसी बरहमी के बगैर पूछा। तुमने हमारे पासपोर्ट रोके हुए हैं, मैंने बेधड़क होकर कह दिया। तुम्हें अंदेशा है कि मैं खामोशी से बैंकॉक बल्कि थाईलैंड से मैदान छोड़कर भाग जाऊंगा? हिल्टन होटल छोड़ने का वाकया बहुत सीधा सा था, मगर वो तुम्हारे दिमाग में जम कर रह गया है। इस वक्त मैंने पहली मर्तबा इस मौजू पर डान से खुलकर बात की थी। इससे पहले मैं चाउफान से जो कुछ कहता रहा वो पूरी तरह डान के कानों तक नहीं पहुंच सका था। चाउफान ने उसे इतनी वजाहत जरूर कर दी थी कि होटल बदलने का इब्तदाई मशवरा उसी का था। डान ने फौरी तौर पर मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। चंद सानियों के लिए लाइन पर सकूत छाया रहा। फिर डान की भारी और तफक्कुर अमेज आवाज सुनाई थी। मैं ये सोच भी नहीं सकता कि तुम जैसा शेर दिल आदमी मैदान छोड़कर भागेगा। तुम गहरी बातें करते हो, दूसरों की कही हुई बातों के भी गहरे मानी निकालते हो। मैं अपनी मजबूरियों की वजह से पसे पर्दा रहने पर मजबूर हूँ। तुम्हारा वास्ता चाउफान से है, इसमें बहुत सी खूबियां हैं मगर एक खराबी भी है। वो सती सोच वाला आदमी है, जो कुछ उसके दिमाग में आता है वो बक देता है। मैं डरता हूँ उस वक्त से जब उसकी कही हुई कोई बात तुम्हें बुरी लग जाए और तुम खामोशी से यहाँ से निकल जाओ। इस तवील वजाहत के बाद डान लम्हे भर के लिए खामोश हुआ, फिर अपनी बात जारी रखते हुए बोला। ये लड़ाई तुमने छेड़ी है। छोटा राजन के पांव किसी भी वक्त उखड़ सकते हैं। उसे पीठ न दिखाई तो वो जल्द ही तुम्हारे हाथों मारा जाएगा। ये नोचता दीवार मुझे साफ नजर आ रहा है। मैं यह नहीं चाहूंगा कि चाउफान की किसी हमाकत की वजह से मैं जीती हुई ये बाजी हार जाऊं। मुझे तुम्हारी जरूरत है अली। मेरे दिल की तसल्ली के लिए सूरत हाल को छू का तू रहने दो। डान जैसे अनापरस की जुबान से निकले हुए इन अल्फाज को मुस्तरद करना मेरे बस से बाहर था। गुफ्तगू बराह रास्त हम दोनों के दरमियान हो रही थी। बीच में चाउफान या किसी और का दखल नहीं था, इसलिए डान तकरीबन खुशामद की हद तक आ गया था। मैंने आर्जी तौर पर पासपोर्टों को भूल जाने का फैसला करते हुए कहा, यह सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी जंग है डान। मैं चाउफान या किसी और की किसी बेवकूफ़ी की वजह से इससे हाथ नहीं उठा सकता। मैं छोटा राजन को फरार करने के लिए पाकिस्तान से यहाँ आया हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है कि यहाँ मैं तुमसे टकरा गया। तुम न मिले होते तो मैं तनहा इस खबीज को इसके कैफरे किरदार तक पहुँचाता या खुद भी यहीं पवंदे ज़मीन हो जाता। खुद मैं तुम्हारे जज्बात को समझ रहा हूँ। उम्मीद है कि तुम मेरी मजबूरी समझ गए होगे। अब हम दोबारा इस मौजू पर बात नहीं करेंगे। अब तो मेरी जुबान से पासपोर्टों का जिक्र नहीं सुनोगे डान। मैंने उसे यकीन दिलाया। डान ने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने बिजली से लाइन मुनक़ता करके अपना मोबाइल फ़ोन मसहरी के सराहने रख दिया। मेरी दानिश में वो गुफ्तगू रायगां गई थी। मैं डान से अपनी बात मनवाने में कामयाब नहीं हुआ था। सिर्फ इतना फ़र्क पड़ा था कि मेरी ज़ुबान से सामे नामी लड़की या औरत की शिकायत सुनकर डान को मेरी नीयत और इरादों पर कामिल यकीन आ गया था। इस वक्त तक जो कुछ हुआ वो बस होता चलाया था। मेरी कोशिशों के साथ कुछ गैबी अवामिल भी कार फरमा थे, जिनके नतीजे में सोबराज जैसे फितने से नाकाबिल यकीन अंदाज में छुटकारा हासिल हो चुका था। मैंने डान और चाउफान की बेखबरी का फायदा उठाकर मोती महल में होने वाले धमाके का क्रेडिट किसी न किसी तरह कबूल कर ही लिया था। इस बारे में असल हकीकत का मुझे खुद भी इल्म नहीं था। हालात की रोशनी में मैंने अमरीकियों के मुलव्विस होने का जो नजरिया अपनाया था वो मेरे अंदाजे से ज्यादा कुछ भी नहीं था। मुझे इस बारे में तगदो करना थी ताकि राजन का तीसरा दुश्मन मेरी निगाहों में आ जाए और मैं इससे कोई गढ़ छोड़ करके राजन का काम तमाम कर सकूं। कराइन ये बता रहे थे कि मुझे न चाहते हुए भी राजन से पंजा आजमाई करना पड़ेगी। इस कांटे को राह से हटाए बगैर डान से पासपोर्टों की बाजियाबी नामुमकिन नजर आ रही थी। इन पासपोर्टों को भूलकर मैं सिर्फ पाकिस्तान की तरफ वापसी का सफर इख्तियार कर सकता था। वहां से आने वाली खबरें हौसला अफजा नहीं थी। दुश्मन तो एक तरफ थे, हालात कुछ इसी नहज पर चल पड़े थे कि गैरों के दबाव में आकर अपनों ने भी मेरा खोज लगाना शुरू कर दिया था। मेरे जिम्मेदार हमदर्दों का कहना था कि मेरी तलाश की वो मुहिम रस्मी थी जो कागजों का पेट भरने के लिए जारी थी, लेकिन कौन किसका जहन को पढ़ सकता है। मुझे अंदाजा था कि वो बातें मेरी अश्क शोई के लिए कही जा रही थी।
میرے اندرونی خانہ کردار سے وہی لوگ واقف تھے جو مجھ سے بہت قریب تھے۔ عام سرکاری اہلکاروں اور لوگوں کو تصویر کا وہی رخ معلوم تھا جس کی تشہیر کی جا رہی تھی۔ بے خبری کے باعث پاکستان کا کوئی بھی عام شہری میرے لیے ایک سنگین خطرہ بن سکتا تھا۔ ایسی صورت احوال میں میرے لیے اپنے ملک کا رخ کرنا کسی بھی طرح مناسب نہیں تھا۔